Welcome. Good morning, all of you students. I am Sanjay Dhode. Today, going to the 12th standard mathematics. Paper 1, chapter number 1 is mathematical logic. In mathematical logic, first concept is the statement. A statement is a declarative, assertive sentence which is either true or false but not both simultaneously, and it is denoted by small letters p, q or dash. क्या है स्टेटमेंट? किसे बोले जा सकता है? स्टेटमेंट यानी ऐसा वाक्य है कि जो एक तो ट्रू हो सकता है नहीं तो फॉल्स हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। और जिस वाक्य का, जिस सेंटेंस का वैल्यूज नहीं होती, एक तो वो ट्रू और फॉल्स, उसे आप स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। जैसे इंट्रोगेटिव है, आई कैन टेक एज द इंट्रोगेटिव, हु आर यू, मैंने ऐसा लिखा है, तो ये स्टेटमेंट है कि नहीं है? हु आर यू, हु इज हु, है ना, बराबर है। तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस रहते हैं वो स्टेटमेंट्स नहीं होते। हाउ ब्यूटीफुल शी इज, एक्सक्लेमेटरी, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो भी स्टेटमेंट्स नहीं होते। हाउ ब्यूटीफुल शी इज, कितना ब्यूटीफुल है, क्या ऐसा अपन बोल सकते हैं क्या? नहीं। इसीलिए और इसकी ट्रूथ वैल्यू भी नहीं डिसाइड कर सकते, वो ट्रू है या फॉल्स है। वो दोनों भी हो सकते हैं, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है कि नहीं? इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी स्टेटमेंट नहीं होते। कमांड सेंटेंस इज आल्सो नॉट अ स्टेटमेंट। ऑर्डर, किसी को ऑर्डर दी हो वो भी नहीं हो सकता, रिक्वेस्ट की है वो भी नहीं हो सकता। इस प्रकार से स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट, क्या है ये ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट? यानी जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, एक आध स्टेटमेंट्स बोला, ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, यस इट इज करेक्ट, यानी दिस statement is a true statement and a value of this true statement is t, means जो statement true होता है उसकी truth value t से डिनोट करते हैं, और जो statement false होता है उसको f से डिनोट करते हैं। okay, this is the truth value of statement. I can take as some examples on statement and truth values. First is the x plus 6 is equals to 9. X plus 6 is equals to 9. So x is equals to put 1. 1 plus 6 is a 9. Okay, this is the false. Again I can put the x is equals to 3. 3 plus 6 is equals to 9. Correct? यानी ये सेंटेंस की दोनों वैल्यूज है, ट्रू भी वैल्यू है और फॉल्स भी वैल्यू है। So what is the definition of statement? Definition of statement is the either true or false. But here this sentence true as well as false. Therefore it is not a statement. Second example, 6 into 4 is equals to 25. 6 is the number, 4 is the number, 25 is the number. Yes, it is a statement. What is the truth value of this? 6 into 4 is the 24, but here 25. So this is the statement, and this statement value is f, because truth value is denoted to f and t is f. Okay, then third example, 3 is a prime number. It is the statement. Yes, true or false? Next things, but 3 is a prime
prime number is a statement. It is a statement. Yes, 3 is the prime number. So truth value of this is T. Next is the number 4. Please give your pen. Please give your. This is the request. And request sentence is not a statement. So it is not a truth values. Then number 5. Who are you? Question mark. So this is an interrogative sentence. And every interrogative sentence is not a statement. So it is a not statement and is not given as a truth value. Okay. Understand the concept of statement, its truth values and some examples. Okay. Next thing. Next things is the connectives, simple and compound statement. Simple statement and compound statement. Connectives. क्या है connectives? Connectives किसे बोलता है? किसे बोला जा सकता है? Connectives and the words or phrase which are used to connect two sentence. Connectives यानी जो ऐसे वर्ड है जो वर्ड से आप दो स्टेटमेंट को जोड़ सकते हैं उसे कनेक्टिव्स बोलते हैं. ये मैथमेटिकल लॉजिक में सब कनेक्टिव्स आप यहाँ पर कनेक्टिव्स का यूज करना है. वो कनेक्टिव्स है, पहला कनेक्टिव्स है एंड, सेकंड कनेक्टिव्स है और, थर्ड कनेक्टिव्स है if, then, फोर्थ कनेक्टिव्स है if and only if, and fifth connectives है not. Okay, we will study the 5 connectives and, or, if then, if and only if, not. यानी ये connectives आप दो स्टेटमेंट जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं. अभी एंड, तो एंड को क्या बोलते हैं? लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड मैथमेटिकल लॉजिकल क्या बोलते हैं इसको? एंड यानी आप बोलते हैं इसको कंजक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कंजक्शन. और होता है, और को आप बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं डिसजंक्शन बोल सकते हैं. डिसजंक्शन. इफ देन, इसको कंडीशनल implications ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं. then if and only if, by conditional, double implications, and not को negation बोलते हैं. समझ में आ गया? उसके बाद में and, जैसे मैथमेटिकल लॉजिकल में आपने लिखना है and, what is the symbol of and? The symbol of and, this is the symbol of and. What is the symbol of or? और को आप बोलते हैं डिसजंक्शंस. ये कंजक्शन हो गया, ये डिसजंक्शन हो गया. आप और भी बोल सकते हैं, डिसजंक्शन भी बोल सकते हैं. इफ देन, सिंगल एरो, वन साइड एरो, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, दो लाइन देके भी एरो दे सकते हैं. इफ देन इसको बोलते हैं, और इसको आप इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं, इसको आप कंडीशनल भी बोल सकते हैं. उसके बाद में इफ एंड ओनली इफ के लिए दोनों साइड एरो और दो लाइन लेके भी आप एरो दे सकते. इस प्रकार से है. इफ एंड ओनली इफ का सिंबल से इस प्रकार से है. आप इसको डबल इम्प्लीकेशंस बोल सकते हैं. इफ एंड ओनली इफ पी, इफ एंड ओनली इफ क्यू. आपको रीड करना है स्टेटमेंट. वी नो दैट P, if and only if Q. Not, symbol of not, यानी not को आप negation बोलते हैं, symbol of not.
studies the 5 connectives and or if then if and only if and not. Understand? Then simple statement and compound statement. क्या है simple statement and compound statement? Simple statement जो स्टेटमेंट स्प्लिट नहीं करते, दोनों दो स्टेटमेंट एक साथ नहीं कर सकते हैं, उसको आप सिंपल स्टेटमेंट बोलते हैं. और जो सिंपल स्टेटमेंट, दो सिंपल स्टेटमेंट, दो से ज्यादा भी सिंपल स्टेटमेंट आप जोड़ सकते हैं, उसको बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट. ओके, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कनेक्टिव्स and their symbols and also simple statement and compound statement. Then let us study the connectives and their truth tables, truth values. Connectives means we know that the connectives, first connective is directly as I can take as the two examples and a P and Q. I can take as the P and Q. Two statements are there. Two statements are there. आपका पैसा पहला कनेक्टिव है and I can here write as the P and Q. आपका second connectives है, which is the second connectives or P और Q. आपका थर्ड कनेक्टिव है इफ देन. इफ देन का सिंबल कैसे है? P सिंगल एरो, P implication Q. फोर्थ वन इज द if and only if, और if and only if का आपका सिंबल है दोनों साइड्स एरो, P डबल implication Q. और lastly negations. Here negation is right is only one statement is only P or Q, so I can write as the any negations is a negation of P. Symbol of this is the negation of P and last is the negation of Q. Okay, here suppose P and Q. Suppose I can take as the both the statement is true. Is first is true, second is true. Second thing is the first statement is true, second statement is the false. Third condition is first statement is false and second statement is true, and last conditions is the both are the false. Okay, here P and Q, first is the and conjunction. यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ पर एक ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू और दोनों फॉल्स है. कंजक्शन में क्या होता है? जब आपके दोनों ट्रू है तो ट्रू आ जाता, दोनों ट्रू है तो ट्रू आ जाता, अदरवाइज आपके सभी स्टेटमेंट्स फॉल्स हो जाते हैं. समझ में आ गया? इफ यानी T or T and T is the T. T and T is a T, otherwise false. Okay, then second thing is the OR. Your truth table of OR. जब आपके दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, आपके दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, तो OR यानी P और Q ये फॉल्स हो जाता, अदरवाइज आपके सभी स्टेटमेंट एक तो भी ट्रू है तो भी आपके सभी स्टेटमेंट ट्रू हो जाते हैं. थर्ड कंडीशन इज द P implication Q. P implications Q में ऐसे बोल सकते हैं आप,
ये इफ देन है। इफ P is true, Q is false, then this is the false। यानी आपका पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आपका इम्प्लीकेशंस फॉल्स आएगा। यानी वो जो वैल्यू है, वैल्यू आपकी फॉल्स आएगी। अदरवाइज जैसे दोनों टी है, दोनों ट्रू है, तो टी आ जाएगा। यप एंड टी, पहला ट्रू दूसरा पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू है, तो भी ट्रू आ जाएगा। दोनों फॉल्स है, फिर भी आपका जो स्टेटमेंट की वैल्यू है वो ट्रू आ जाएगी। पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, यहां पर आप इफ एंड ओनली इफ P is true and Q is true, both are the same. Here P is F, T is F, both are the same. Both are the same. True, true. F, F. Then value is true. Then value is true. Then different T, F, F, T. First is true, second is false. First is false, second is true. Then the truth value of double implication is the F. Okay, understand? Then here negations. Negations means not. So T is a single statement, is a simple statement. Is T negation of T is the true, so negation of this is equals to negation of T means उसको आप false लो। ट्रू का negations F। वैसे ये यहाँ पर भी T है, यहाँ पर भी आप F लिख सकते हैं, यहाँ पर F है, यहाँ पर आप T लिख सकते हैं, यहाँ पर F है, यहाँ पर आप T लिख सकते हैं। negations लिखना है आपको। वैसे Q को आपको negation लिखना है, यहाँ पर Q या T है, तो ये भी F हो गया, यहाँ पर F है, ये T हो गया, ये T है, ये F हो गया, ये F है, ये T हो गया। देखो आपने यहाँ पर पढ़ा है कि दो स्टेटमेंट लेने के बाद जैसे एंड से अपन सेंटेंस जोड़ते हैं, स्टेटमेंट्स जोड़ते हैं, तो जैसे दोनों ट्रू है तो ट्रू आता, अदरवाइज सभी फॉल्स आ जाते हैं। वैसे P और Q और केस में, डिसजंक्शन केस में दोनों ट्रू है, यानी दोनों फॉल्स है तो फॉल्स है, मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पर, अदरवाइज ट्रू आ जाता। इम्प्लीकेशन में इफ देन के सेंटेंस में जो भी सेंटेंस इफ देन से जोड़ा हुआ है उसकी वैल्यू जो है, जैसे पहला सेंटेंस ट्रू और दूसरा सेंटेंस फॉल्स है तो ही फॉल्स आता, अदरवाइज ट्रू आ जाते। और यहाँ पर डबल इम्प्लीकेशन में सेम वैल्यूज है, ट्रू ट्रू एफ है, तो आपकी वैल्यूज ट्रू आ जाएगी, अदरवाइज फॉल्स। और निगेशन लिखना है, टी का निगेशन एफ हो जाएगा, एफ का निगेशन टी हो जाता। ये सिंपल स्टेटमेंट में लिखते हैं। देखो यहाँ तक आपने पढ़ा है, पहला है स्टेटमेंट्स क्या है, उसके ट्रूथ वैल्यूज क्या है, उसके बाद में उसके एग्जांपल्स देखें, उसके बाद में लॉजिकल कनेक्टिव्स कौन सी है, सिंपल स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, उसके बाद में डिस्क्राइब्स कर दें यहाँ पर कनेक्टिव्स, कनेक्टिव्स कौन से हैं, उसके नेम, उसके सिंबल एंड उसके ट्रूथ टेबल्स। यहाँ तक आज यहाँ तक पढ़े हुए हैं। मैं इसके आगे का पार्ट है, पार्ट 2 जल्दी ही लेकर आने वाला हूँ। ओके, थैंक यू, यहाँ पर रुकते हैं।